Good evening, everyone. Welcome to another episode of the A2H Podcast. I believe this is episode number 4. Today's topic will be the movie Animal, starring Ranbir Kapoor, Mhm. obviously. And the reason we wanted to discuss this movie is because Himalaya liked it and I hated it. So we've got two quite polarizing opinions, and we've been wanting to discuss this, but we kept holding it off for the podcast. के podcast पर discuss करेंगे. Okay, So yeah, welcome, guys. I might have some views that might be matching yours, but then overall, I would say I did like the film. But I'll let you discuss what are the dislikes and let's get straight into it, shall we? yeah, I'm glad you liked it. You didn't love it or something. Uh, let तो क्या shall I uh, present my case of why I didn't like it first? Go ahead. ठीक है. With all ears, my lord. Where the audience is the my lord. We're fighting their Audience case. ऑडियंस फाइट ऑडियंस तो भाई ट्विटर पे भी लड़ रही है इस बात पर लाइक आई थिंक द ऑडियंस जनता कभी इस पर जनता को यू नो लड़ने का बहाना चाहिए होता है, वो तो किसी भी बात पे लड़ते रहते हैं. I hope our audience is not like that. या इन द कमेंट्स स्टे सिविल स्टे वो क्या कहते हैं लाइक स्टे ऑन द सब्जेक्ट डोंट गेट इमोशनल राइट या सो I'll start off by saying that I'm like I I admittedly I'm not a fan of violent and gory movies, right? Yet I believe that every movie is an expression of art, and Mhm. it doesn't have to conform to my standards. And I accept that different kinds of audiences will like different kinds of movies to me, right? So I'm not gonna go around के oh इसमें violence थी तो it shouldn't have been published, etc. Like there are many movies which like horror movies for example मैं देखता नहीं हूँ क्योंकि मुझे violence gore और ये सब पसंद नहीं है बट मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि इस फिल्म को पब्लिश होना मना होना चाहिए था however on Animal I do have that kind of opinion. um, my problem with it is the glorification of misogyny, toxicity, ये जो alpha male bullshit, and most importantly, violence towards women, right? So for these 4 5 reasons, मतलब एक पूरा पैकेज जोड़ दिया. फिर ना मैंने डायरेक्टर पे भी थोड़ा रिसर्च किया कि लाइक कौन है ये बंदा बिकॉज ही मेड कबीर सिंह एज वेल राइट और कबीर सिंह वाइल नॉट दिस स्ट्रॉन्ग लेकिन तब भी बहुत लोग बोले थे कि इट्स वेरी ऐसे क्या कहते हैं एंटी फीमेल जो भी Misogynist. बोलते हैं मिसोजिनिस्ट है थोड़ा उसमें टच तो और लाइक आई बिलीव कि ये सारा कुछ स्पेशली इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया वेयर दिस इज एन इशू जहां पर जब शाहिद कपूर उसको वो क्या है उसकी वाइफ अब व्हाट्स हर नेम I don't know. Kyra एनीवेज Advani? कियारा Kyra अडवाणी Advani कियारा in अडवाणी that हाँ film. या हाँ. तो जब शाहिद कपूर उसे थप्पड़ मारता है तो द होल सिनेमा हॉल erupts in cheering, right? और I did तो not notice that. Did it happen? नहीं मैंने like this is I didn't watch Kabir Singh in cinemas, but Hmm. in a lot of showings this did happen, right? A lot of people shared this कि जब उसको ऐसे लाफा मारता है वो तो ऑडियंस कुछ ऑडियंसेस हंस रही थी कुछ वो लाइक तो वैसी सोसाइटी में आई फील लाइक मूवीज लाइक दिस शुड बी बैंड अप अंटिल द ऑडियंस इज मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये आर्ट है और this is my final point before I close my opening statement. Um, the movie, this movie, coming back to Animal, it doesn't make a point.
टू पॉइंट आउट के क्या वो बंदा बीमार था, डिड ही हैव अ साइकोलॉजिकल इलनेस, वाज ही डिड ही नीड ट्रीटमेंट. इट वाज फुल ऑन ग्लोरिफिकेशन. और एंड में मुझे था जो लास्ट सीन है कि उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा रही है, फाइनली देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द गाय, राइट. बट नो, डायरेक्टर से नहीं हजम हुआ. डायरेक्टर ने वहां भी वो जो उसका छोटा सा बच्चा था, वो फिर गाड़ी का दरवाजा खोलकर पापा पापा करते हुए ही गोज बैक टू रणबीर कपूर. एंड वो बैकग्राउंड में गाना पापा यू आर द ग्रेटेस्ट वट एवर वो सॉन्ग प्ले होना शुरू हो जाता है. सो दैट्स माई ओपनिंग स्टेटमेंट. Right. So because I'm defending the film, I'm not going to talk about any negatives in the beginning, and then we'll discuss all the negatives and all the goods about the film uh, later on in the podcast. But what I did like about the film is throughout the film, I was not bored at all. Each scene of the film had me glued to my seat. Um, whereas, like I've noticed, like with a lot of Bollywood films, like these days, especially take Brahmastra for example, it was what was that? That was so boring. Uh, okay, maybe good storyline, but then I was bored throughout the film. एक दो सीन में कुछ ऐसे लगता है कि वो हो बहुत बढ़िया हो गया कुछ बहुत बढ़िया तो किसी में भी नहीं लगता but फिर हम्म. भी चल. And then like take Gadar 2 for example. What bullshit was that? It was so bad that film was. ऐसे वो तो बस ऐसे सेंटिमेंट पर वो वर्क कर गई नहीं तो वो ऐसे भोजपुरी फिल्म जैसी मूवी बनाई है वो. वो गदर टू, या इट वाज काउंटिंग ऑन, क्या बोलते हैं उसे, ट्रिप डाउन मेमोरी लेन. Yes. And hype, जो hype थी मूवी की एनिमल की, I did not think it did disappoint. It did not. तो वो मतलब because the fact I was like glued to my seat throughout, it's a sign of a good film. Picturization was good. वो pinned factor was good. कि वो टब्बर वाला फैक्टर वाज गुड कि वो बाहर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता स्टोरी कि वो उसका पता नहीं किसके भाई थे और किसने. आई अंडरस्टैंड इट. मैं ऐसे बता रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कितने तीन भाई थे शुरुआत में और फिर तीन के वो कोई क्या मुझे समझ नहीं आया कि कौन दादा है कौन नहीं है बट हम्म. वो अगर ढंग से समझो तो समझ आ जाता है. बट लाइक इट वाज क्वाइट कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन. वो दूर तक कहाँ जैसे ये भी उसमें थोड़ा सा हाईलाइट करा है कि कैसे इंडिया से लोग ऐसे कुछ पहले हिंदू सिख्स होते थे फिर उसके बाद मुस्लिम्स बन गए. जैसे वो जो दूसरी फैमिली थी उसकी मतलब बहुत बहुत कुछ पैक करा है फिल्म ने. और एक्टिंग तो ऑब्वियसली यू कांट डिनाई वो या ये जो रणबीर कपूर है वो भी ही इज अ ब्रिलियंट एक्टर. हाँ, ऑब्वियसली एक्टिंग जबरदस्त है. लॉर्ड बॉबी लॉर्ड बॉबी हैड व्हाट अ स्क्रीन प्रेजेंस ही हैड. और हाँ, दिस गाय बॉबी जो का भाई, बॉबी का भाई oh my god this guy Sachin लेजेंड. what's his name Sachin Sachdeva is it um समथिंग सचदेवा, मे बी नॉट yeah. सचिन. And man, I've seen like a few films of his, and his presence on the screen is purely हाँ, demonic. You see, like उसके डायलॉग की इंटेंसिटी इतनी सही होती है आवाज एकदम वो सौरभ, पता लगता है सौरभ वो विलन है. सचदेवा. सौरभ हाँ, सचदेवा. Yes. um वो, what एज आई वाज else? सेइंग यस्टरडे, कि जैसे रोमांस में शाहरुख की आंखों में वो टच है, वो डेप्थ है, वो इमोशनल, Yes, वैसे yes. इसका ये डार्कनेस में डेप्थ है. That- yeah, Like yeah, he's yeah. got this depth in his eyes when it comes to like dark roles. Those कभी मैंने depth इसको और किसी रोल में देखा नहीं है. बट बॉबी एक तो देओल की इस, आंखों में कितनी डेप्थ थी यार. वो जब द फर्स्ट सीन बॉबी देओल आई आई रिमेम्बर वो स्क्रीन में क्या होता है यहाँ पर ऐसे पहले वो होता है पूरी स्क्रीन उसके साथ होती है रणबीर कपूर के साथ फिर वो स्क्रीन ये रणबीर कपूर ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है नीचे बॉबी देओल दिख रहा है और लाइक यहाँ बॉबी देओल पूरा फ्लेक्स हो गया उसकी आंखों में यू कैन सी लाइक उसकी भी ऐसे डेमोनिक प्रेजेंस ऐसे स्क्रीन पर दिख रही है कि इज लाइक वो दाढ़ी एकदम परफेक्टली शेप एंड इज लाइक स्माइलिंग एंड देन माय
I see what's happening. That was purely so good. Such good acting हाँ. and expression in that scene throughout whatever is done. I personally believe Bobby Deol का role थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता था movie में. Mm, but yeah, script writing was perfect, storyline was perfect. But इतना आधे घंटे से 1 घंटे से ऊपर चला जाता है और किसी को रणविजय का नाम ही नहीं पता होता कि उसका नाम भी है कुछ. एंड यू से Hmm. मिसोज ये जो मूवी थी इतना इतनी लेयर्ड फिल्म है ये, कि यू कांट स्ट्रिक्टली टॉक अबाउट मिसोजिनी और जो भी यू टॉक्ड अबाउट. इतनी ज्यादा लेयर्ड फिल्म है. वो अपनी बहनों का केयर भी करता है. ऐसे नहीं कि वो मेल मेल फिगर है, मतलब मेल है घर का और वो इकलौता बेटा है अपने पापा का, तो वो उसको सारी जायदाद उसको मिल जाएगी. उसको जायदाद का कोई लालच नहीं है जो मूवी में दिखाया है. वो अपनी बहनों को कहता है कि यू कैन बी एन इंडिपेंडेंट स्ट्रांग वुमन. वो प्रमोट करता है. उसको बिजनेस का कोई लालच नहीं है कि कोई मेरा बिजनेस ले लेगा या मेरी बहन के साथ शेयर हो जाएगा. तभी उसकी इसी बात पर उसका पापा उसको थप्पड़ भी लगाता है एक. I mean, like, I really like the film. Except now coming to the negative, I But did think. before you come to the negatives, even even towards his sisters, there was misogyny. Hmm, For example, वो बोलता है कि I am the man of the house. I have to protect my sisters. I have to choose your partners, right? Who the hell that's are you to choose someone's partners? that is एक the point I was gonna make एक about. बहुत छोटा Um, एक बहुत छोटा like it's you might not even have noticed it कि उसकी जो छोटी बहन होती है वो आई थिंक कोई स्पिरिट पी रही होती है. आई डोंट नो, ये विस्की क्यों होगी. पीरी है? तो वो कहता है ये क्यों पी Wine रही है. pure बोला ना रेड वाइन पिया कर. लाइक is good for अगेन, your heart. No, no, but that is no. I don't think कि वो इट कुछ शोज गलत द है. डायरेक्टर्स मिसोजिनी कि भाई गुड फॉर हार्ट होता तो तू भी पी लेता ना रेड No, वाइन. because बट इट्स on नॉट my गुड फॉर हार्ट. if इट्स you बिकॉज यू थिंक के women can't take No, 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 no. It's not that. It's a myth in India that वो रेड वाइन हार्ट के लिए अच्छी होती है, तो हर कोई किसी को कहता है. वो ये एक्चुअली मिथ नहीं मेरे है, इट्स ट्रू. ओके ट्रू, बट वो हर कोई किसी को कहता है. मेरी शादी पर मैं विस्की पी रहा था तो मुझे भी बोला गया था मेरे फादर इन लॉ की साइड से कि व्हाट आर यू ड्रिंकिंग, यू आर ड्रिंकिंग विस्की, डोंट ड्रिंक विस्की, drink red wine because it's good for heart. That's what I was told literally, and that nobody was being misogynist to me or like trying to put me in my place. It's just something say, and like yeah, I can come around and I can point out a few misogynist things, acts in the film. However, there are some which is just not purely misogynist. There are some which is just a cultural thing, and with the changing culture, we might not actually understand if it was good or not. Then coming back, if you want to, if you want to allow me to talk about negative things now, um, the point you just mentioned, कि I'm the man of the house, and after Papa, when you're not here, who is the man of the house? I'm the man of the house after when you're in without you being present, and then I'm responsible for protecting my family. उस पॉइंट पर मुझे लगा था जब वो उससे पहले भी जब वो गन लेकर पहुंच जाता है अपनी दीदी के कॉलेज में, तो मुझे लगा था कि मे बी he's got some psychological problem, and they're going to mention that in the film, but हाँ. they didn't. But then ऐसे तो कितनी सारी मूवीज हैं. शाहरुख खान की मूवी है डर, उसमें वो किरण करता है. अगर ऐसी कोई आज मतलब कोई भी उस टाइम भी क्या आज भी कोई करे, आज तो खैर ज्यादा सेंसिटिव हो गए लोग, उस टाइम पर फिर भी अगर कोई लड़का ऐसे लड़की को फॉलो करता तब भी वो पकड़ा जाता, पुलिस वुलिस धर लेती उसको. बट और दैट्स, हाँ, कंटिन्यू. and then people talk about gangs of वासेपुर. वो वायलेंट थी और उसमें भी मिसोजिनी थी और उसमें भी
I think it's the Gangs of Wasipur was a different character. वो गरीब लोग थे ऐसे जमीन से उठे एकदम से. But this guy was like the richest man, son of the richest man in India. That's how it's shown in the film. तो इसका थोड़ा सा तो बनता था मुझे जैसे वो अनिल कपूर कहता भी है अपने बेटे को कि बेटा why are you doing all this? There are people who can do it for you. तो um, so like if I tried to put myself in his place, I would actually let the people do it and not do it myself. Um, but yeah, well, do you हाँ, please? बट मेरा आर्ग्यूमेंट यहाँ था कि द फैक्ट दैट ही इज साइकोटिक, राइट? Mm, it Either it should have been mentioned, right, or he should have been let to die. डाई नहीं, मतलब उसका जो कैरेक्टर है उसको कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी चाहिए थी, अदर देन कि उसका पापा उसको लाफा मार देता आते जाते. देयर शुड हैव बीन मोर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर हिज एक्शंस. पर उसकी भी अगर आप पार्ट डर टू का भी तो बोलते आनी हो. है. हाँ. अभी उसकी पार्ट टू भी तो आनी है तो तब पता लगेगा कि क्या पार्ट टू तो मैंने कॉन्सिक्वेंसेस है. देखना ही नहीं है. इट वाज लाइक आई एम नॉट गोना गिव इट अ चांस. But consequences being के, for example, basic example, डर, you mentioned डर, right? डर में शाहरुख played the antagonist, right? वो he was the negative role. As Good the point. antagonist, at the end he faced a consequence. There was a consequence to his actions, right? सेम विद गैंग्स ऑफ वासेपुर इज अ बिट डिफरेंट, क्योंकि उसमें वो दिखा रहे हैं कि लाइक यू नो अनएजुकेटेड पीपल. तो उसमें Mm, इट्स लाइक अ मिरर कि ये दिस इज सोसाइटी. mm, इट्स अ मिरर टू द, ऐसे थोड़ा ऐसे कि mm, टू लाइक गिव शॉक वैल्यू कि ये सोसाइटी है. यहाँ पर it is not a mirror to society because this is like the richest of the rich. This is like the educated of the educated, right? और उसमें ये मेंटालिटी दिखाना विदाउट एनी कॉन्सिक्वेंसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल कि अल्फा मेल गेट्स ऑल द चिक्स. भाई उसकी शादी हो रही है, उस लाइक नेक्स्ट डे इट्स mm. अ वेडिंग. वो क्या छोटा सा एक भाषण दे के ओ जो बीटा मेल्स थे वो पोइट्स बन गए, वो ये बन गए, और अल्फा मेल्स वी आर दिस दैट. और फिर पेल्विस तेरा बड़ा परफेक्ट है, बच्चे अच्छे बच्चों को अच्छा बर्थ Health करेगी तू. issues. like it's that to me is like misogyny. ठीक है, misogyny you are saying कि it's just a but जो psychotic दिखाया है, my problem is end तक मैंने ये मूवी इसलिए देखी लास्ट सीन तक कि शायद अब इसे अपने कहीं किए का कुछ वो भरना पड़ेगा. लाइक कुछ कोई कॉन्सिक्वेंस एक दिखा दे. नहीं, एंड तक भी उसको रिडेम्पशन दिखाई उस बंदे की कि जब वो जा रहे थे सब उसको छोड़ के, his son runs back to him, right? That's full redemption के he was a shit father, he was a shit husband, he was a That's a shit son. cliffhanger. That नहीं, उसका वो चैप्टर सन का, आता है आई बाहर. थिंक Yes, आई थिंक but क्लिफ अब ये नहीं हैंगर तो पता. आई थिंक क्लिफ हैंगर तो वहां है ना, वो जो reconstruction की है, and that is the cliffhanger. I'm on about a different part of the story where his wife leaves him and his family is leaving him. That should, I don't think he should have been, there should have been redemption for his character. Because अगर, या फिर you mention that he's psychotic. It's either one of those, in my opinion. You either mention कि the guy is psychotic, he's ill, he's not all there. अगर आपने वो नहीं किया, मीनिंग ही इज कम्प्लीटली नॉर्मल हेल्दी गाय, तो यू डिडंट नीड टू एंड में रिडेम्पशन नहीं देने की जरूरत थी. कि अगर उसको जब सब छोड़कर जा रहे हैं तो ओ नो, his son still loves him despite all the bullshit he's done. Sorry, we don't swear in the Yes, podcast. Sorry. चार तुम्हारे व्यूअर्स हैं ब्रो क्या. किस चीज किस चीज की दिक्कत है. I feel like ये डायरेक्टर ना बहुत मिसोजिनिस्ट है. Like he thinks of himself as an alpha male,
और ही इज वेरी मिसोजिनिस्टिक इन हिज वेज, और बहुत ऐसे ईगो, वो छोटा ईगो होता है ना, ही इज गॉट दैट। हम्म। वो क्या है, व्हाट्स her नेम, अनुपमा चोपड़ा के साथ उसका इंटरव्यू था, राइट? उसमें, नॉट श्योर। बट बट यू हाँ, नो मैंने हर, राइट? सुना, क्लिपिंग्स देखी है कि ये तो कबीर सिंह वायलेंट लगी लोगों को, तो वायलेंस तो मैं अब अब मैं दिखाऊंगा। करके दिखाता हूँ, बच्चा है क्या 5 साल का, अब मैं करके दिखाता हूँ। देन ही गेट्स लाइक, ही गेट्स ऑफेंडेड, ही इज लाइक, वो राजीव मसंद है, राइट? ही इज ऑल्सो क्रिटिक। तो उसने कबीर सिंह को क्रिटिसाइज किया, rather हम्म। than taking on the criticism and being like, okay, I don't agree with his opinion, but okay, whatever। वो उस पे अटैक कर रहा है कि वो मोटा है ना, मोटा, ही इज ओबीस, वो क्या नाम है वो, ऐसे, लाइक, दैट्स अनसिविलाइज्ड बिहेवियर। लाइक, हाँ। वो ईगो, उसका मेल ईगो इतना छोटा है कि ही कांट हैंडल क्रिटिक्स के वो रिव्यूज। अगर आपने हैंडल करना है, देन उसको पर्सनल, डोंट गेट पर्सनल, don't call him fat and whatever, कि वो he's this or that, don't call him names। And then also in that interview he said कि uh, वो she questioned him on वो जो स्लैप था, तो उसने आगे से बोला कि स्लैपिंग नॉर्मल है, अगर हम्म। किसी रिलेशनशिप में स्लैपिंग, एंड ब्रो दीज आर जोक्स वी वुड मेक, राइट? हम ये हम्म। बातें आयरॉनिकली बोलते थे कि वो क्या हमारा जोक था एक, I या don't know if we're मुराद। going to mention it on the podcast. फाइन, मुराद। No, you remember, you should. Okay, I don't know if we're gonna like. No, not this. ओके। ओके, लेट्स मूव ऑन। If you don't, मतलब उसकी end है, punchline है कि if you don't know why, she definitely does, या, right? ओ यस, वो जोक था ना, पर मैंने पता नहीं कहा। ओ, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द अमेरिकन फिल्म्स, उसमें इजिप्ट का वो, जब it was guacamole bay. It was related to guacamole bay, where like Guatemala, Guatemala. Yeah, guacamole खाना होता है। guacamole is like something softer. Guacamole is avocado की वो paste। Okay, Guatemala, Guatemala bay. Guatemala। एंड वो उसमें फिर उन्होंने वहां पर रखने के बजाय, जो जिसमें मुस्लिम्स को इलीगल डिटेन कर लेते हैं 9/11 के बाद, Guantanamo, Guantanamo Bay। गुआंटानामो बे, तो फिर वहां पर रखने के बजाय, when they felt like political pressure, they started like sending them to Egypt, and then this Hmm. Egyptian guy, Egyptian general, makes a joke: beat your wife every day. If you don't know why, she does. And that was a joke, had me cracking. He didn't say it as a joke, but बट I I दैट्स laughed at माय it पॉइंट, because, कि yeah, हम लोग I, इसको एज ए जोक देखते हैं, लाइक वी yeah. टुक दैट sarcastically। यहाँ पर Hmm. ये है संदीप रेड्डी वांगा, द गाय डोंट लाइक डायरेक्टर, ही बिलीव्स इन इट, ही इज लाइक के Hmm. मारम कुटाई होनी चाहिए रिलेशनशिप में, हेल्दी रिलेशनशिप में। इफ यू आर हाँ, नॉट, ये तो मैंने सुना था कि अगर if you can't beat each other up, then what is love? हाँ, What is your some kind of screwed दैट्स up लाइक हिज definition आइडिया of ऑफ love लव। now? Hmm. हाँ, आई थिंक उसने ना उस मोमेंट में, क्योंकि उसको कन्फ्रंट किया गया, ही डिडंट हैव एन आंसर, सो ही जस्ट ब्लर्टेड दिस आउट। आई डोंट थिंक दैट्स हिज लाइक होल मंत्र। आई थिंक क्योंकि ही फेल्ट अंडर प्रेशर, और वो उस टाइप का बंदा नहीं है जो बोले कि हाँ ये ऐसा नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस सीन, राइट? तो उसने बस बोल दिया, डू गेट मी, उसने बस या बोल या दिया। या उसको बस दिमाग में वही आया, तो उसने वही चला दिया। हाँ, आर यू डीजेइंग, Sorry. आर यू डीजे?
hear like a lot of disturbance in my speaker. So I thought, Your voice is muffled. maybe. I can't understand you. Oh no. Can you hear me now? Yes, Is right? this is Okay. better. So yeah, I kept hearing some kind of disturbance in my speaker, so I just had to put my headphones on very quickly. Yeah. Yeah, yeah, I understand. उसको ऐसे ही किसी ने पूछा on the spot he couldn't make up a better answer, so it was like हाँ, उसने जब बस आप ये एक बोल दूसरे दिया को मार ही नहीं क्योंकि सकते तो मैसेज कर तो देते हैं। रिलेशनशिप क्या And that's the thing. उसका वो मेल ईगो इतना छोटा है कि like he has to like justify himself. As Hmm. our dear friend would say, don't justify yourself, and you shouldn't have to, right? Yeah, और especially ऐसे छोड़ एक मूवी के उस पे you don't have to hmm. like give your character certificate. It's But not a dear friend, bro, dearest friend. dearest friend, Yeah. Um, so नहीं वो अरे मैंने मेरे को अच्छी लगी मूवी बट देन या द bro, पॉइंट यू आर I मेकिंग इज वैलिड. understand. I understand कि अच्छी लगी. I can appreciate. I can appreciate the movie. Even देखो फिर वही बात करूंगा. I can appreciate the violence, the goriness, the story even to an extent. His character कि वो psychopath था, right? मैं अ, ये सब एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ. But अगर if the director was not such a misogynist और उसने वो misogyny या like 2 out of 2 movies he has shown time and again that he's a misogynist plus his interviews, right? So if that was not the case, I appreciate the movie. I love the रणवीर कपूर की एक्टिंग, बॉबी देओल, वो बॉबी देओल का भाई, एक्ट्रेस थोड़ी like she wasn't all that great, but she had a few good scenes, especially like when she confronts him about his affair. That was the first time she came across as strong. And then वो जब there's another scene near the stairs, वहां भी कोई argument हो रहा होता है इन दोनों का. I जब वो forget. कहता है अपनी मेरे को एक दो डायलॉग से प्रॉब्लम है वहां पर वहां पर वो जो वो पैड वाला डायलॉग बोलता है वहां पर कि तेरे को 4 बार दिन महीने में पैड चेंज करना होता था उसमें इतने नखरे करती है मैं रोज दिन में 4-50 बार करता हूँ। हम्म, और फिर क्या कहता है कि इमेजिन कि तेरी छाती की जगह मेरी छाती होती या कि मतलब ही इज ट्राइंग टू से कि यू वर अ गर्ल और मेरे ऐसे मैनली छाती मेरे जैसी होती तेरी तब तेरे बाप पे कोई अटैक करता तो क्या करती। हम्म, तब भी हाँ, तेरा यही रिएक्शन होता। लाइक व्हाट इज दिस मैन, बाप तो बाप yeah. होता है जैसा मर्जी। वहां पर भी मुझे लगा ना कि वो एंड में दिखाएंगे कुछ तो साइकोटिस्ट साइकोटिक हाँ, दिखाएंगे इसका। but they didn't, and that is my fundamental problem with the movie कि वो नहीं दिखाया. और सेम विथ कबीर सिंह, उसमें भी नहीं दिखाया. लाइक ऐसे टॉक्सिक मेल कैरेक्टर्स होते हैं और एट द एंड वो हीरो ही रह जाते हैं. और कभी इस डायरेक्टर ने नहीं दिखाया कि उनको कोई छोटा सा भी एक आउंस भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ गई हो. नो, ही शोज कि वो परफेक्ट है. और अगेन या सेम इंटरव्यू वो जो अनुपमा चोपड़ा के साथ था, कि उसमें उसने भी ऐसा ही कुछ अलोंग द लाइंस ऑफ दीज मेरा आर्ग्यूमेंट किया था कि कबीर सिंह को कभी कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करनी पड़ी. तो वो आगे से डायरेक्टर बोला कि हाँ मतलब लोगों को था कि वो मर जाए एंड में, तब बड़ी खुश रहती ऑडियंस, या फिर उसे कुछ हो जाए तो नो, ही इज अ स्ट्रांग मैन, ही इज ब्ला ब्ला ब्ला, इट इज हिज नहीं चाइल्ड. तो वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ी ना कि वो यस एंड में वो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है पर थ्रू आउट वो जो मूवी है उसमें वो कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस कर रहा होता है कि ही स्टेज मिजरेबल और शराब पीता रहता है। दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस। और उसको भी उस मूवी में भी उसको कुछ प्रॉब्लम थी वो कुछ तो था यार उसको जैसे जिस तरह से वो सुपर हाई इंटेलिजेंस थी उसकी
आईक्यू हम्म, कितना ज्यादा हाई था, पढ़ाई में कितना अच्छा था, पर वो सोशली ऑकवर्ड था, तो उसका कुछ प्रॉब्लम तो था ही ना. ही वाज हम्म। ऑन सम काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम. वो एंड हमारे लिए सोशली. स्पेक्ट्रम है, आपके हाँ. लिए मेरे लिए वो स्पेक्ट्रम है, लेकिन उस डायरेक्टर के लिए वो नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल, दैट शुड बी अल्फा मेल, दैट्स द That प्रॉब्लम. guy, that's what I'm thinking, that that director guy is on some kind of spectrum as well. कि उसको ये normal लगता है ना, तो वो दैट्स व्हाट आई एम, तो दैट्स माय आर्गुमेंट. यहीं पे आर्ग्यू, यहाँ पे हम पॉडकास्ट खत्म कर सकते हाँ. हाँ, वो हैं. ये सही बात है. क्योंकि आई थिंक ये तो अग्रीमेंट था ही, विदाउट इवन डिस्कसिंग इट. ये वाला अग्रीमेंट तो था ही, मेरे को लगता है शुरू से ही था. बट द प्रॉब्लम बीइंग कि अब इससे जो यूथ है, जैसे जो यंग जैसे यूथ है, देयर इज, आई हैव ओनली जस्ट डिस्कवर्ड दिस टर्म कॉल्ड चैड. एंड चैड इज basically a rich guy, who is an alpha male, and alpha male consists of all these things ke चैट misogynist तो लाइक hai. इज अ गुड टर्म, इट्स अ पॉजिटिव टर्म. Is it a good term? You're, Term like, but however, I have what I've heard, I don't know. I've it's only kind just of recently discovered. ironically, हाँ. Chad is the alpha guy, and who's a rich guy, and जो रणवीर कपूर ने दिखाया है alpha male. नहीं, uh, चैट जो होता है, ही इज लाइक लाइकेबल एज वेल. okay. एवरीवन But लाइक्स अ then, चैट. uh, hasn't this been the scene कि वो especially youth में ये ज़्यादा होता है क्या? Well, I say youth, like not that I'm not one, but I'm trying to say कि जो जैसे teenage जो होती है उसमें ज़्यादा होता है, जो alpha males होते हैं. अब to be fair, I don't really believe in the term alpha or beta. I don't actually believe in it, but while it is a term, I'm just going to refer these people as alpha or beta, right? कि जैसे लड़कियां अल्फा की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं बचपन में, बचपन व्हेन आई से लाइक टीनेज अगेन, तीन. कि um, कि वो रेहाना का गाना नहीं था, कम ऑन रूड बॉय बॉय, यू नो ऑल दीज थिंग्स लाइक. और मैं काफी ऐसी लड़कियों से मेरी बात भी होती थी उस टाइम पर, तो वो they would all agree कि they do like a kind of a rude boy, वो गाना भी बैड सुनकर. बॉय. हाँ, बैड बॉयज, यस यस. तो वो मे बी दैट्स व्हाट मेक्स चैड्स अट्रैक्टिव, राइट. पर वो जो इस मूवी में बोला है कि, बट देन अगेन इट्स अ स्क्रिप्ट, इट्स एन आर्ट. आई कैन रिस्पेक्ट दैट इन दैट context. However, I cannot agree with everything that movie has shown me, and this is how it should be. But now, coming back to the youth, कि वो इस चीज को कैसे लेगा? Would the youth accept it and apply it in their own life, or they would take it as an art? Because I remember this, वो रणवीर कपूर उसी टाइम शादी वाले सीन पर ही उसको कहता है, जब उसकी एंगेजमेंट होती है लड़की की, तो उसको बोलता है कि लोग पहले अल्फा होते थे जो हंटिंग के लिए जाते थे, वो अल्फाज होते थे. और फिर वो चांद सितारों की बातें करने लगे जो अल्फा नहीं थे, वो पोएट्री लिखने लगे. ये सारी बातें बीटा लोग करते हैं जो अल्फा नहीं बन पाए. एंड दैट्स नॉट ट्रू. Even हाँ. poets can be alpha, but like however the नहीं, term is. Yes. नहीं, नहीं, हिज पॉइंट वाज राइट कि जो अपनी बॉडी से और अपनी ये मैस्कुलिनिटी से इम्प्रेस ना कर पाए, वो फिर बन गए पोइट. मतलब दैट इज द टर्म अल्फा मेल. मतलब जो गालिब लोग हैं, ये बीटा मेल्स हैं उस थ्योरी के मुताबिक. एंड अगेन, आई एम नॉट रियली फॉन्ड ऑफ दिस अल्फा बीटा No, गामा no, no. मेल. I don't believe in it. I don't believe हाँ, in it. सेम, So सेम. आई डोंट even like टेक्निकली कोई बिलीव इन इट, अल्फा बीटा बट होता वो नहीं जो, है. Even a beta by definition, जो बीटा की definition है या अल्फा की definition है, an alpha male could be poetic as well, right? An alpha male, the definition is someone someone who
dominates people, they can be a Hmm. poet as well. That doesn't necessarily means कि alpha है वो dominate ही करेगा, poetry नहीं लिखेगा. What the alpha beta is like is it's it's not नहीं, really a thing. उसका जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था ना कि जो अपनी बॉडी से अपनी मैस्कुलिनिटी से इम्प्रेस नहीं कर पाया, उसको आर्ट्स का सहारा लेना पड़ा, उसको शब्दों का सहारा लेना पड़ा कि मुंह से मीठी मीठी बातें कर दे, बिकॉज हिज बॉडी इज नॉट muscular and toned. That's what his point was, right? And that kind of goes with the whole toxic masculinity, alpha male, alpha b. It goes with it. Matlab, as per the definition, I'm not an alpha male, right? Hmm. अगर आप उसकी definition देखो, I'm not But an what alpha is male, I'm a B. see, it doesn't matter. Like people consider me to Definition be an वही है alpha जो male. रणबीर कपूर ने दी थी मूवी में. That People is the consider no definition is alpha male is who's someone dominant who dominates the crowd. However, I don't consider myself as an alpha male, but then I know people who would consider me an alpha male. But I know correct. deep within me, I'm not an alpha male. I do like poetry, and like it's all about perception. How do you perceive me? Do you perceive me to be dominant? Because you know me very well, you cannot perceive me as dominant. And then, Hmm. like again, like the way I'm putting my argument forth, who's watching this podcast, they might think I'm being an alpha male here, but I'm not an अच्छा, alpha male. sit guy. No, but do you मैं understand my मैं point? नहीं हूँ डोमिनेंट, तू मान मैं नहीं हूँ डोमिनेंट. But do you understand? मानता है See, कि नहीं? this is ironic. This is ironic. This is what would you call it? Poetic justice. But इनजस्टिस हो गई जरा. hmm, वो द क्वेश्चन इज वेरी वैलिड कि क्या ऑडियंस क्या समझती है. मुझे ना, द रीजन मैंने नहीं देखनी थी ये मूवी बिकॉज इट्स गोरी एंड इट हैज वायलेंस. वो ट्रेलर में भी था कि वो बॉबी देओल के पूरे मुंह पर खून है, राइट? यू नो आई डोंट लाइक सच मूवीज. लॉर्ड बॉबी का तो मैं फैन हो गया मूवी देखने के बाद. हाँ, लाइक उसके परफॉर्मेंस एक्सप्रेशंस इज ए मैन प्लस जब प्लस. वो उसको ट्रेलर में ये सीन दिखाते हो जब और उसकी आंखों से ऐसे आंखों से ऐसे ऐसे करता है ना. और वो और भी, वो जो ऐसे नाइफ पकड़ी होती है, लाइक हाँ, यू और यू जो ये वाला जो सीन है ना, उसकी आंखों से ऐसे वो एक्टिंग कर रहा होता है और यू कैन टेल कि ही इज अबाउट टू क्राई एज वेल. वो मूवी में तो दिखाया कि उसका भाई मर जाता है, उसको भाई की खबर मिलती है तो वो ऐसे सैड होकर ऐसे कुछ कर रहा होता है, पर ट्रेलर में सिर्फ ये दिखता है. यू कांट एक्चुअली टेल कि वो क्या बोल रहे हैं, किसी को डरा रहा है या रो रहा है. वो रोने वाली भी आंखें और डराने वाली भी आंखें और वो ऐसे करके ऐसे डरा भी रहा. मैन, दैट गाय इज मतलब this is so layered if you Yeah, if you go to he's found his calling. या और वो रणबीर का तो है ही वो. अरे वो तो वो तो है ही वो संजू एक. में भी ग्रेट था. हाँ मतलब उसका तो मैंने पॉइंट आउट ही करना बंद कर दिया है. बॉबी तो नया नया जैसे अभी नया नया नीश उसने अपना ढूंढा है ना. इज फाउंड इज वेरी वेरी बिलोंग्ड. हम्म. क्योंकि बॉबी देओल की पहले की मूवीज होती थी वो ऐसे बहुत जेनेरिक होती थी. जैसे ऐसे पहले लव बरसात आई थी स्लैश वो. एक्शन. हाँ, लव स्लैश एक्शन एंड लाइक उसका पहले एक गाना था. सोल्जर एक मूवी आई थी. मतलब ऐसी पॉइंटलेस सी मूवी थी, बस ऐसी मूवी बनाई हुई थी और वो कितनी बहुत चली थी. हमारा मैं आई ग्रू अप लिसनिंग टू दैट सॉन्ग सॉन्ग सोल्जर सोल्जर, सोल्जर सोल्जर, बातें मीठी बोल. बातें बोल कर. बट या ऐसा कोई मीनिंगफुल मूवीज नहीं थी उसकी. वेयर एज ये रणबीर कपूर की मीनिंगफुल मूवीज भी हैं बहुत सारी. एक बर्फी है, आई डोंट नो इफ यू सीन इट. ब्रो, कमिंग टू रणबीर कपूर, एक्चुअली अब थोड़ा दो. एक तो मैं जो, व्हेन यू डिडंट लेट मी फिनिश, वो मैं ये बोल रहा था कि आई डोंट नो कि जनता कैसे देखती है इसको. आई वाज़न्ट गोना गो वॉच द मूवी, राइट? एंड देन दिस गाय एट माय जॉब, मनोज, उसने मुझे बोला कि इट्स अ ग्रेट मूवी, ब्ला ब्ला ब्ला, तो मैंने फिर बुकिंग करा ली.
right? Hmm. नेक्स्ट डे आई वांट जब देखी, आई वांटेड टू कन्फ्रंट हिम एंड आस्क के ब्रो क्या तुझे अच्छा क्या लगा इस मूवी में, राइट? बट देन आई वाज लाइक कि आई एम नॉट क्लोज टू हिम लाइक दैट कि मैं उससे पूछूं कि वेदर ही लाइक द मिसोजिनी। बट ब्रो, Hmm. उस सिनेमा हॉल में इतनी मिसोजिनी थी। Hmm. यू डोंट गेट दिस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इट्स अ वेरी मेच्योर ऑडियंस, राइट? Hmm. जर्मनी में इट्स ऑल फ्रेशीज। Hmm. तो Okay. वो ना, दे लाइक स्ट्रेट ऑफ द बोट। तो जैसे इंडिया में नहीं होता कि वो ये फुल रिएक्शन साइमल्टेनियसली चल रही Hmm. होती है। तो बहुत बार मिसोजिनिस्ट सीन पर चीयरिंग हुई, बहुत Hmm. बार वायलेंट सीन्स पर हंसा गया, स्टफ Hmm. लाइक दैट। जब उसको बोला कि लिक माय बूट्स, द ऑडियंस एंजॉयड इट, लाइक हा 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 हा, या। I thought, what what is this? On that scene, I was like, ये क्या मतलब है कि lick my हाँ, boot मुझसे प्यार इट करती तो वाज करके दिखा. अनकंफर्टेबल। हाँ, अनकंफर्टेबल सीन था। बट वो ऑडियंस वहां फुल खुश, पता चलेगा लाइक शी's gonna prove her love। तो लाइक in terms of freshies, I think they actually do get affected by such movies, and that's why I feel like वो they shouldn't, वो जो certification board है, they shouldn't allow it। No, ब्रो, no, no. So, बिफोर यू okay, आंसर, अगला okay. टॉपिक मैंने डिस्कस करना है, Mhm. रणबीर कपूर के पापा इश्यूज। ओके, बट कैरी ऑन। हाँ, ओके, ओके, वो इसके बाद आते हैं. मैं सी एज वो क्या नाम है उसका, मनोज वाजपेयी, उसका एक क्लिप वायरल हो रहा था कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सिनेमा आपको बुरा या अच्छा इंसान बनाता है. द लिमिट ऑफ सिनेमा इज कि आप कोई मूवी देखते हो और उसमें आपको कुछ गलत, बुरा या सही दिखाया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वही बुरा बन जाओगे या सही बन जाओगे. एंड आई एग्री विद इट लाइक टू सर्टेन एक्सटेंट. आई विल लेट मी फिनिश फर्स्ट. वो बोलता है कि आप किसी मूवी को देखकर उसका स्टाइल कॉपी कर लोगे, शर्ट नहीं वैसी खरीद लोगे, गॉगल्स वैसे पहन लोगे, बट यू वुडंट बिकम द काइंड ऑफ पर्सन दैट फिल्म गाय इज. ऐसे किसी को मैं देखकर नहीं बोलूंगा लड़की को कि मेरे बूट लिख करके दिखा कि मुझसे प्यार करती है तो. And I can tell you how it might not impact the audience as much. ऐसे लड़कों लड़कों में बैठकर मेरे टाइम में, जब मैं लड़कों में ऐसे बैठता था, छोटे बच्चों में, जब मैं भी बच्चा हुआ करता था, टीनेज होती थी, तो हम बेशक लड़कों लड़कों में बैठकर ऐसे हम बातें करें, तेरे भाई ने मजा चखा दिया उसको और ऐसे कर दिया और ये कर दिया. बट वो एक्चुअल में अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर कुछ बोलता था उसको, तो शी हैज हिज ओन वॉइस, राइट, ओन ओपिनियन, और उसको नहीं अच्छा लगता था और मैं ऐसे चैट वाली हरकत कोई करता था तो मुझे वहीं पर टोक कर मेरी औकात दिखा देती थी. तो और मैं वहां पर चुप से शरीफ से सोना बाबू बनकर बैठ जाता था. ठीक है यार, आपने कह दिया फिर भी जो तो हम कर देंगे ऐसे, है ना. तो nobody is like gonna become a murderer or a psychopath unless somebody is already a psychopath. तो फिर वो शायद देखकर मूवी को वो हाँ ऐसे करा मैं भी ऐसे करूंगा. अगर उसको कोई मेंटल इलनेस नहीं है किसी को, तो कोई भी ऐसा नहीं बनेगा. और वो मिसोजिनी तो ब्रो, यू यू कांट जस्ट से कि फ्रेशीज में इंडिया में मिसोजिनी है, पाकिस्तान में मिसोजिनी है. मिसोजिनी हर जगह है. इवन यूरोप में है, अमेरिका में है. जैसे अब वो यहाँ पर सोसाइटी मेच्योर हो रही है, धीरे धीरे मेच्योर हो रही है. एक टाइम आएगा जब मेच्योर हो जाएंगे, बट देन वेयर वो क्या कहते हैं उसको, वी आर बुद्धिजीव्स, राइट. तो धीरे धीरे किसी चीज को सीखेंगे. अभी यहाँ की सोसाइटी इंप्रूव हो रही है, यूके यूएस की सोसाइटी इंप्रूव हो रही है, बहुत मेच्योर हो चुकी है, बट अभी भी मेच्योर नहीं. आई कैन टेल यू व्हाई कि ऐसे किसी अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेशनल वो मिनिमम वेज, बट देन if you go on to the other businesses like lawyers and stuff, women
have to work extra hard to get Hmm. as pay as get as much salary as the male counterpart is getting. So this is a kind of misogyny if you think about it. एंड अभी क्योंकि इंडिया में ऐसे ह्यूज इंडिया पाकिस्तान उस कंट्रीज में बांग्लादेश वहां पर ह्यूज पॉपुलेशन ऐसी है जो कि उस मेच्योरिटी लेवल पर नहीं पहुंची है। देन डोंट गेट मी रॉन्ग, काफी परसेंटेज ऐसी भी होगी पॉपुलेशन की जो उस मेच्योरिटी लेवल पर पहुंच चुकी है, बट नॉट ऑल। तो ऑन एन एवरेज वहां की मेच्योरिटी लेवल थोड़ी कम होगी। तो उनको शायद समझने में बात लगे कि नहीं ये आर्ट नहीं है, या वो एक्ट उसको उस तरह की हरकतें करने की कोशिश करे। बट देन अगेन दोनों ही होते हैं ना, मेल फीमेल होते हैं रिलेशनशिप में। तो आई थिंक एक जना ज्यादा हावी होगा तो दूसरा जना अपने आप ही उनको बता देगा कि अब तो बेटा लाइन क्रॉस कर रहा है। Hmm. और इट्स Yeah. नॉट दैट कि वो हार्ट ब्रेक से कोई सिर्फ वुमन ही सफर करती है, गाइस सफर द मोस्ट फ्रॉम हार्ट ब्रेक ओनली बिकॉज क्योंकि गाइस की आई डोंट नो, वो वुमन को वैसे भी जैसे काफी बहुत सा बड़ी परसेंटेज ऐसी भी है जहां पर वो वुमन को इतना टीनेज तक तो वो रिलेशनशिप में पड़ती ही नहीं है क्योंकि उनके घर वाले अलाउ नहीं करते। मतलब या घर के डर से या किसी और बात से अलाउ नहीं करते। कई कितने तो ऐसे पॉपुलेशन ऐसी भी होगी कि उनको ऐसे लगेगा कि अगर मेरे घर पे पता लग गया कि मेरा कुछ ऐसा चल रहा है तो मेरी पढ़ाई बंद करवा देंगे। जो कि इट्स एन इरेशनल फियर बट लाइक इट इट हैपेंस। Hmm. I don't think there will be a massive impact on the audience, but who am I? It's just my opinion. नहीं, एक मूवी से नहीं होता, लेकिन इट्स गेनिंग मोमेंटम। इट स्टार्टेड विद Hmm. कबीर सिंह, उससे पहले क्या था वो, साउथ में वही मूवी थी एक, एंड यू समथिंग। गॉट टू थिंक कि किस तरह की अगर अगर इस तरह की मूवीज ज्यादा अट्रैक्शन गेन कर रही है। एंड आई डिडंट पर्टिकुलरली लाइक द फिल्म बिकॉज ऑफ इट्स मिसोजिनी एंड वो साइकोपैथ। आई लाइक द फिल्म बिकॉज इट वाज अ गुड स्टोरी लाइन एंड आई वाजंट बोर्ड थ्रू आउट द फिल्म। कोई भी मूवी अभी रिसेंट पास्ट में उठाकर देखो, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा स्ट्रेच आता है व्हेन यू आर बोर्ड कि ये क्या चल रहा है यार, या बिना मतलब का एक्शन दिखाए जा रहे हैं। अब इस मूवी में मैं बोर नहीं हुआ। ओके। आई रेस्ट माय केस लॉट। मेरा मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है रणवीर कपूर की मूवीज और डैडी इश्यूज। हम्म। लाइक, कहाँ ओके। से शुरू करूं मैं? लाइक, आई थिंक अ गुड 70% of his movies are based on the same thing. हम्म। कॉमेडी भी ले लो उठाकर, अजब प्रेम की गजब कहानी, राइट? उसमें भी उसका हम्म। पापा उसे निकाल देता है घर से। देन फिर आ जाओ तमाशा पे, डैडी इश्यूज। वेकअप सिड, हम्म। डैडी इश्यूज। संजू को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो संजू बाबा की डॉक्यू वो है, स्टोरी बायोग्राफी है। उसमें भी अ, डैडी इश्यूज है। उसमें है, बट वो संजू के हैं वो तो संजू बाबा के। वो उसको ओके। इग्नोर कर देते हैं। और कौन सी थी? yesterday I came up with I've a whole got a list. very interesting point about that. हाँ. I've got a very interesting point about that. If you're finished, I can go ahead with my point. Okay, I'll keep thinking of the movies list in the meantime. Uh, I think ये इतनी सारी डैडी इश्यूज वाली मूवीज इसलिए हैं क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, अम, या मतलब हमसे एक जनरेशन पहले या Hmm. कुछ हद तक हमारी जनरेशन में भी मोस्ट पीपल हैव डैडी इश्यूज। क्योंकि पापा लोग इतना बिजी होते हैं अपने काम में, या वही घर की रोजी रोटी कमाने में, वो बच्चों को इतना टाइम दे ही नहीं पाते। और इसी वजह से a lot of people do generate daddy issues.
Um, Abhi, I watched this guy on YouTube called Shan Parashit. Um, Okay. I really like his reviews about the films. उसने जब ये एनिमल का ट्रेलर आया था ना, जब वो कहता है पापा आपको बस मेरी एक्टिंग करनी है, मैं पापा पापा बोलूंगा, एंड यू 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 से पापा पापा एंड आई डू योर एक्टिंग। तो उसने हम्म उस पे अपना एक केस बताया था जो उसके साथ हुआ उसके पापा के साथ, कि और लाइक ऐसा नहीं है कि सारे पापा कोई बच्चे हेटफुल बन जाते हैं कि मेरे पापा ने टाइम नहीं स्पेंड करा, बट ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमा हमेशा रह जाता है, हर किसी की लाइफ में होगा ही होगा ही, हर किसी की लाइफ हम्म में होगा। अम, वो उसने उसमें वो कहता है कि मैं पता नहीं उस टाइम कुछ 10 साल पहले, 10-12 साल पहले इंडिया में ऐसे वो बड़ा, दिल्ली में बड़ा क्रेज आया था कि गाड़ी में वूफर होने चाहिए। तो वो पापा ने बोला उसके कि कुछ वो अम, गाड़ी में काम कराने जाना, स्पीकर वगैरह लगाने, तू चल मेरे साथ, तेरे तेरे पास फ्री टाइम है तो वो चला जाता, वो कहता पापा वूफर लगाएंगे, पता नहीं उसने पापा ने उसकी बात इग्नोर कर दी या क्या हुआ, या सुनाई नहीं दी या अटेंशन नहीं पे करा। तो जब वहां पर गया, दोनों बाप बेटा वहां पर गए, तो उसने अपने पापा को बोला कि पापा वूफर 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 वूफर। तो इतनी हम्म देर में उसके पापा को पता नहीं क्या दिमाग में आया, ही स्टार्टेड शाउटिंग एट हिम, लाइक वो मैकेनिक के सामने, सबके सामने इतनी बढ़िया ओ उस पे शाउट करी। वो कहता है कि जब वो सीन मैंने देखा तो मुझे वो याद आ गया कि वो चाइल्डहुड ट्रॉमास जो है, फादर इश्यू डैडी इश्यूज वाले, वो याद आ गए। एंड ऐसे आई कैन, देयर एवरीबॉडी हैज डैडी इश्यूज, आई थिंक हाँ रणवीर। एवरी बट यहाँ डिफरेंस ये है ना कि आई थिंक मे बी दिस गाय इज मोर ओपन अबाउट इट लाइक बट रणवीर सिंह नहीं करता, शाहिद कपूर नहीं करता, लाइक ऑल कितने एक्टर हैं, जॉन इब्राहम, पूरी लिस्ट है एक्टर्स की, वो नहीं करते। बट इसकी देयर इज अ स्पेशल थिंग कि ये हमेशा इस टॉपिक को लाता है विच आई थिंक तो हैज टू वो डू विद तो ये भी तो बात है ना कि वो ही ऑलवेज चूजेस इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स, इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ फिल्म्स। जैसे वो बर्फी थी उसकी मूवी, और ऐसी कौन करता है, किस किसने करी है ऐसी मूवीज? सिर्फ यही है जो रणबीर बर्फी कपूर में ही भी है। था ना थोड़ा कुछ पापा का एंगल, वो मुझे मर याद जाता है नहीं। शुरू में ही। हाँ, वो शुरू में ही शायद नहीं होता, बट ये इसकी सिनेमा की चॉइस बट बड़ी अच्छी है। और जो सबसे अच्छा, जग्गा जासूस, इफ यू सीन दैट फिल्म, इट वाज अ, अगेन डैडी इश्यूज। या जो जग्गा जासूस में, आई कांट रिमेम्बर डैडी इश्यूज, बट हाँ डैडी इश्यूज तो थे उसमें, तो दैट वाज बेस्ड ऑन डैडी इश्यूज, यस यस यस। हाँ Sorry, but it was a, like, look at the interesting choice of films. वो तमाशा मैंने देखी नहीं है वो मूवी, क्योंकि I I didn't like that kind of content, but like it's such an interesting list of films he's done. हम्म जॉन अब्राहम की सारी मूवीज एक जैसी ही होती हैं। उसने देखा कि मेरी एक मूवी चल गई तो, एंड आई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू जॉन अब्राहम, इज माय फेवरेट, आई लव हिम। फोर्स चल गई तो फोर्स टू आ गई। फिर वो उससे पहले ही वही क्लेम टू बी हेडिंग टुवर्ड्स इंडियाज like most famous action hero, जॉन अब्राहम डिड। वो ऋतिक रोशन की भी, उसकी भी इंटरेस्टिंग चॉइस होती है, बट लाइक नॉट एज डाइवर्स एज रणबीर कपूर। हम्म रणवीर सिंह जो है वो पीरियोडिक ड्रामा ज्यादा करता है। वो और मतलब आई डोंट लाइक हिम। yeah, let's keep the personal opinions to ourselves. और वो और किसका नाम लिया था नहीं अभी? इवन एज एन एक्टर आई डोंट थिंक वो उतना वर्सेटाइल है जितना लाइक आई थिंक इज ओवररेटेड। हम्म आई डोंट सी हिम, मतलब रणबीर कपूर आई एडमिट ही इज वर्सेटाइल एज एन एक्टर। हम्म रणवीर सिंह का मुझे फील होता है कि एक ही तरह का, एक्सेप्ट लुटेरा, लुटेरा में ही वाज अ बिट टोन डाउन, लाइक
that was a good character. वो थोड़ा Hmm. थमा कर he was different. वरना हर फिल्म में वही होता है, hyper active, loud, obnoxious, that's like his kirdar in every movie. Except Lutera. I think Lutera is one of the, और मुझे कोई याद नहीं आ रही, बाकी सब में मुझे लगता है it's always the same character. Have you seen Okay, Lutera? bro. I've seen Lotera, yeah. It was a different kind of movie. हाँ, we are reaching the 1 hour mark. Yes. I was going to say that. If we're done talking about animal, we can take the other conversation over the phone, but let's just keep this strictly below 1 hour. Okay. मैं फिर स्टॉप कर देता हूँ. Okay? पर ऑडियंस को बोलो Do you कि wanna जरा वो लाइक कर दें वगैरह वगैरह. please कर दो like, Tell them, subscribe और share तो bro, बनता you're है. the alpha male. Since you're the alpha male, you can uh, Like, force them. subscribe and comment, please. वरना कुछ वरना नहीं बोल. वरना तो मैं पोएट्री सुना दूंगा फिर और क्या होगा. Hmm. Right. Okay, guys, thank you very Bye, much for guys. watching. It's been an honor. अगर अब तक सुन रहे हो तो thank you from the bottom of our Please hearts. like करो, please subscribe करो. अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा. And Okay. keep watching. Bye, guys. Signing off.